اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ یوٹیوب کے معزز دوستو، السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 بھائیوں کی عجیب قبروں کی کہانی سنانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ اب دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک ہی آ جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملکیت چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا: سناؤ، کیا ہے قصہ وہ؟ اس نے کہا: یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدے دار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظامات پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی، اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ اس عابد شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی میں وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس عابد شخص نے رخ پھیر لیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ عابد شخص ان دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی جگہ زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پہ لکھ دینا: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ ان دونوں بھائیوں نے اس عابد شخص کی موت کے بعد ایسا ہی کیا، اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ وہ شخص حسب معمول اپنے بھائی کی قبر پر آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب
वापसी का इरादा किया तो उसने कब्र के अंदर से धड़म की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल उससे फट जाता। चुनाचे वो घबराहट और खौफ के साथ वापस हुआ। जब रात हुई तो उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज सुनी वो क्या थी? उसने कहा, वो हथौड़े की आवाज थी। मुझे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा फिर भी उसकी मदद ना की। चुनाचे वो शख्स सुबह गमज़दा उठा और अपने भाई को और दूसरे खास लोगों को बुलाया और कहा कि मैं समझता हूँ हमारे भाई ने जो अपनी कब्र पर अशआर लिखने की वसीयत की थी उसका मकसद मुझे तंबीह करना था, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। चुनाचे उसने अमारात छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया और वक्त के बादशाह अब्दुल मुल्क बिन मरवान को इस बारे में खत लिखा तो उसने लोगों को हुक्म दिया, इसको छोड़ दो, जहां चाहे जाए। चुनाचे वो पहाड़ों और सहराओं में रहता रहा, यहां तक कि जब उसकी मौत का वक्त आया तो वो चरवाहों की एक जमात के साथ था। उसके भाई को खबर पहुंची तो वो हाजिर हो गया और कहा, ऐ मेरे भाई, कोई वसीयत नहीं करनी? उसने कहा, क्या वसीयत है? कोई माल नहीं जिसकी मैं वसीयत करूं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा लेना चाहूंगा, और वो ये कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके मुझे मेरे भाई के पहलू में दफना देना और मेरी कब्र पर लिख देना। कैसे लज्जत पाए वो शख्स जिसको यकीन हो कि बहुत जल्द उस पर मौत अचानक आ जाएगी और उससे अजीम मलकियत और तमाम बड़ाई छीन कर उस कब्र में उसको ठहरा आएगी जिसका वो बासी होगा। और मेरे भाई, फिर 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। चुनाचे वो शख्स मर गया और उसके भाई ने उसकी वसीयत पर अमल किया। जब उसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस होने लगा तो उसने एक शदीद आवाज सुनी जिससे उसकी अकल ज़ाइल होने के करीब हो गई और वो वहां से बेचैन होकर लौटा। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। उसने कहा कि मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो उसकी तरफ लपका और उससे पूछा, क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? उसने कहा, मुलाकात तो बहुत ही दूर है। मैंने कहा, मेरे भाई, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, खैरियत से हूं। मैंने कहा, मेरा दूसरा भाई कैसा है? उसने कहा, वो तो नेक पेशवाओं के साथ है। मैंने कहा, हमारा क्या हाल होगा? उसने कहा, जिसने दुनिया और आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देख लेगा। बस तुम अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत समझो। रावी का बयान है कि उस तीसरे भाई ने भी दुनियादारी से किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपने माल को तकसीम किया, जायदाद बांट दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। उसका एक बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत और बाकमाल नौजवान बना और तिजारत शुरू की, यहाँ तक कि तिजारत में एक अहम मुकाम हासिल किया। उसके बाप की मौत करीब आई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान वसीयत नहीं करते? उसने कहा, ए मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल ही नहीं जिसकी वो वसीयत करे, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने चचाओं के साथ दफना देना और मेरी कब्र पर ये शेर लिख देना। कैसे मजे ले सकेगा वो जिंदगी से जिसका रुख ऐसी कब्र की तरफ हो जिसकी घाट नौजवानों को बूढ़ा कर देती है और चेहरे का रंग उड़ा देती है और जल्दी जल्दी जिस्म और जोड़ों को बोसीदा कर देती है। जब ये करो तो उसके बाद 3 दिन तक तुम मेरे पास आ जाया करना और मेरे लिए दुआ करना। उस नौजवान ने वसीयत पर अमल किया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने एक आवाज सुनी जिससे उसकी जिल्द सुकड़ गई, रंग उड़ गया और बुखार चढ़ गया और वो वापस घर आ गया। रात को ख्वाब में उसका बाप आया और कहने लगा, मेरे बेटे, तुम हमारे पास आने से नजदीक हो और मौत करीब तर है। बस तुम अपने सफर की तैयारी कर लो और कूच का बंदोबस्त करो और अपना सामान उस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है।
उस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाना है, और धोखे में ना रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगा के जैसे तुमसे पहले लोग धोखे में रहे और अपनी आखिरत के मामले में कोताही का नतीजा मौत के वक्त उनको शदीद नदामत लाहक हुई और उम्र की बर्बादी पर कफे अफसोस मलते रहे। चुनाचे ना उनको अफसोस ने कुछ फायदा पहुंचाया और ना ही कोताहियों पर शर्मिंदगी ने उनको उस शर से निजात दिलाई जिसका वो सामना करेंगे क़यामत के दिन अपने बादशाह की तरफ से। मेरे बेटे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब्दुल्ला बिन सदका कहते हैं कि जिस बूढ़े ने वाकया सुनाया उसने बताया कि जिस रात को उस नौजवान ने ये ख्वाब देखा, सुबह को मैं उसके पास गया तो उसने वो ख्वाब हमें सुनाया और कहा कि मुझे यकीन है कि बात ऐसी ही है जैसे मेरे बाप ने कही, और मैं समझता हूँ कि मौत मेरे सर पर मंडला रही है। रिश्तेदारों और लेन देन वालों से मामला साफ किया और सलाम कहा और लोगों से अलविदा कहा। लोगों ने उसे अलविदा कहा जैसे किसी को किसी चीज से डराया गया हो और उसको उसकी तवक्को भी हो। वो कहता था कि मेरे बाप ने कहा जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। इन तीनों से मुराद 3 लम्हात हैं, तो वो गुजरे लिहाजा वो नहीं हैं। अगर 3 दिन हो या 3 महीने या 3 साल। चुनाचे वो 3 दिन तक सदका करता रहा। जब उस ख्वाब को 3रा दिन हुआ तो उसने सुबह सवेरे अपने अहलो अयाल को जमा किया, उनको अलविदा कहा और सलाम कहा, फिर क़िबला रुख होकर लेट गया और आंखें बंद कर ली और कलमा शहादत पढ़ा और वफात पा गया। उसके बाद एक अरसा तक लोग गाहे बगाहे उसकी कब्र पर दूर दराज से आते थे और नमाज पढ़ते थे। हासिले वाक़या ये है, बेशक जो सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करें और उसी से मांगते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाक़या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।